Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. By the grace of Almighty Allah, I'm also fine. Yesterday, as you all know, we have discussed the long water, or you can say long term transport in plants that was actually associated with water. Today, वहाँ पे हमने बताया था ट्रांसपरेशन कोहेजन पुल मॉडल भी बताया था, जिसको आप कॉमनली कहते हो डिक्सन चार्जेस थ्योरी और ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी. Today we are going to describe what is actually transpiration, how it occurs, and what is the importance of transpiration in plants. सबसे पहली बात, ट्रांसपिरेशन होती क्या है? अगर आप देखोगे, ट्रांसपिरेशन मतलब वो सिंपली लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors through the general surface of a plant or leaf. That is called a transpiration. Loss of water, or you can say evaporation of water भी कह सकते हो. Loss of water in the form of vapors, through the general surface of a leaf. Simply, loss of water through the general surface of a leaf is commonly called as transpiration. Transpiration occurs in the form of water vapors. That means liquid phase यहाँ पे convert होती है into gaseous phase. Now see, अगर आप देखोगे ट्रांसपिरेशन है क्या एक्चुअली, इसका काम क्या है एक प्लांट में, इसकी वजह से एक प्लांट में क्या होता है. सबसे पहली बात मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपिरेशन actually it involves the loss of water in the form of vapors through the general surface of a leaf. The best promising candidate for transpiration is leaf. However, herbaceous plants जो होते हैं उनमें भी ट्रांसपिरेशन होती है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक प्लांट में जहाँ पे भी क्लोरोफिल है वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होती है. In other words, in a plant wherever photosynthesis occurs, transpiration occurs. Remember it always, because transpiration और photosynthesis के बीच में कंपैरिजन है. ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर. Now see, transpiration it usually occurs through special pores commonly called as stomata. It usually occurs through stomata. As you all know, stomata क्या होता है? Stomata are simply the pores which are produced by the God cells. स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा आर सिंपली द पोर्स विच आर लोकेटेड ऑन ए प्लांट और लीव्स में पोर्स होते हैं. उन पोर्स को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स. मैंने ये भी बताया था गार्ड सेल्स आर आइदर डंबल शेप्ड और दे आर किडनी शेप्ड. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में किडनी शेप्ड होती है, लेकिन ग्रासेस में डंबल शेप्ड होते हैं. गार्ड सेल्स एक्चुअली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पोर इन बिटवीन देम, that is commonly called as stoma, and the whole structure is commonly called as stomatal apparatus. Now see, जनरली अगर तुम वो जनरल व्यू यह सिटोमेटा यह सिटोमेटा ओपन गसन ड्यूरिंग डे टाइम एंड यह सिटोमेटा क्लोज गसन ड्यूरिंग नाइट. मगर ये याद थवन सिटोमेटा ओपन गसन तो क्लोज गसन यह सिंपली डिपेंड कर अकिस प्रॉपर्टी पे, दैट इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ गॉड सेल्स. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा इज एसोसिएटेड विद टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ गॉड सेल्स. In other words, you can say, यम साथ गार्ड सेल्स टर्जिड आसान, स्टोमेटा तम साथ ओपन आसान. गो ज एजम्पशन गोडनिच एजम्पशन स्टोमेटा आसान ओपन तम साथ येले गार्ड सेल्स आसान टर्जिड. When guard cells are turgid, remember it always, when guard cells are turgid then stomata is open. Guard cells turgid गसान अकि process से तथ वनान endosmosis. The absorption of water by the guard cells when they are connected with such a cell that contains less solute concentration than the guard cells, it is commonly called as endosmosis. Stomata hasa actually a pore is produced गसान guard cells से, मगर guard cells यम साथ turgid आसन गो यम साथ तिम water absorb करन तथ वनान endosmosis, तिम हसा तम साथ turgid आसन. ये turgidity of guard cells is associated with opening of stomata. Second assumption जो है stomata stomata आसन close तम साथ यम साथ guard cells lose करन water, यम साथ guard cells मज अख process गस तथ वनान exosmosis.
So that means loss of water from the guard cells, that is called exosmosis. Obviously guard cells yel water lose karen yim hasa ch shrink gasan tat ch es wanan simply yim ch banan flaccid. Go when the guard cells are flaccid, stomata is closed. ये आपको दिमाग में रखना है। गो अख प्लांट यमिस मज स्टोमेटा ओपन आसे तमिस मज स्टोमेटा इसलिए ओपन आसन तिकाज गार्ड सेल्स आब एब्जॉर्ब करित बनन टर्जिड. Turgidity of guard cells is associated with opening of stomata. Second one is when the guard cells undergoes the process of exosmosis, मतलब यम साथ guard cells lose च करन water lose करन सित हसा छु guard cellन मज आब नेरन नेबर. तमिक मतलब गो तिहिंद walls च actually इवन चौंखड़ावने तिम च shrink गसन, that means सच बनन flaccid. Flaccidity सित छु cause गसन closing of stomata. यम च ज exceptions. Now ये तो याद मैं वोनमुत तो ये जो स्टोमेटा होता है इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ गार्ड सेल्स along with the subsidiary cells. यम छ इस मज गार्ड सेल्स. लेट अस सपोज बमान यह हसा छ गार्ड सेल, ये छ एक गार्ड सेल और ये दूसरी गार्ड सेल है. अमिस छ लाइड आसन सबसिडियरी सेल्स. यम गई सबसिडियरी cells and these are guard cells. ध्यान छु थावन यम guard cells आसन छु गोडनथी यमन guard cellन मज हसा छु इनर आउटर walls आसन thin. guard cells में जो outer walls होते हैं, इनके जो outer walls होते हैं, the outer walls of guard cells are thin. यम हसा छु आसन thin, while as इनके जो inner walls होते हैं, inner walls are thick. युद्ध होत क्या बल्कि तिम छ आसन इलास्टिक और वो दूसरा इलास्टिक होते हैं. गार्ड सेल्स के आउटर वॉल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं और इन गार्ड सेल्स के जो इनर वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं और इलास्टिक होते हैं. मतलब ये इनर वॉल है, दिस इज थिक एंड इलास्टिक. ये जो थिक आसन यू गो आउटर वॉल. आउटर वॉल थिन आसन, इनर वॉल्स आसन थिक. आउटर वॉल्स एक्चुअली गार्ड करन मतलब यम स्पैन करन यथ पोरस, यथ वन पोर मतलब स्टोमा. यम गई सबसिडियरी सेल्स. यम गार्ड सेल्स रेडिली आमित सप्लाई करने विद माइक्रोफिब्रिल्स बट नॉट लॉन्गिट्यूडनली. इसलिए यम रेडिली तिकाज एसोसिएट विद देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग. क्या होता है जब गार्ड सेल्स सबसिडियरी सेल्स से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो दैट मींस इनको को आप एब्जॉर्ब फ्रॉम सबसिडियरी सेल्स. व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सबसिडियरी सेल्स, एज ए रिजल्ट अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, उसको आप टर्गर प्रेशर कहते हो. टर्गर प्रेशर मतलब गो सिंपली यसे सैक अंदर की साइटोप्लाज्म यह आब चो या वैक्यूलम यह आब चो यह हसा एक्चुअली फोर्स अप्लाई करन अमकन वालन पे तथ वन टर्गर प्रेशर. गो यम साथ गार्ड सेल्स आब करें एब्जॉर्ब फ्रॉम सबसिडियरी सेल्स, गो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय गार्ड सेल्स इज कॉमनली कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस. यमन मज हसा टर्जिडिटी बढ़न. टर्जिडिटी बढ़ने से हसा इन आउटर वॉल्स लम हेवन इनर वॉलन एंड दे बिकम क्रिसेंटिक. क्रिसेंटिक मतलब गो मून शेप्ड चंदर लाइक बनन. याद थावन when guard cells absorbs the water from subsidiary cells, the outer walls they push the inner walls towards themselves. पानस कुन यम outer walls यमन inner wallen हेवन लम पानस कुन तमे लमस हेन से हसा यम बनन क्रिसेंटिक. एज ए रिजल्ट मंज पोर क्रिएट गसन तथ वन स्टोमा. गो तम मतलब गो गार्ड सेल्स तम साथ टर्जिड आसन एंड टर्जिडिटी से स्टोमेटा ओपन गसन. वो रीजन क्या छो गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब करन वाटर. देखो गार्ड सेल्स जो है यम गार्ड सेल्स यमो कोर एब्जॉर्ब वाटर कमो पे सबसिडियरी सेलो पे एब्जॉर्ब्स वाटर. तो जो पानस पता वाटर गस एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लेस कंसंट्रेशन. या यू कैन से वाटर छो हमेश मूव गसन तमे एरिया पे यत वाटर पोटेंशियल ज्यादा आस टू दैट एरिया यत वाटर पोटेंशियल कम आस. सबसिडियरी सेलन मज यम साथ वाटर पोटेंशियल ज्यादा छो आसन
गार्ड सेलन मज वाटर पोटेंशियल कम आसान या कंसंट्रेशन आब सब्सिडरी सेलन मज ज्यादा एज कंपेयर टू गार्ड सेल्स तम पत आब गसान ट्रांसपोर्ट सब्सिडरी सेलो पे गार्ड सेलन मज ये गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब करें वाटर वाटर एब्जॉर्ब करने से अंदर की डेवलप गसान टर्गर प्रेशर डेवलप गसन से आउटर वाल जो है आउटर वाल पुशस इट पुल्स आउटर वाल पुल करान इट पुल्स द इनर वाल्स यह हसा अंदरमन वालन पानस कुन लम हेवन इनर वाल्स एंड मेक देम क्रिसेंटिक तिम हसा बनान तम से क्रिसेंटिक जब वो क्रिसेंट्रिक बन जाते हैं मतलब क्रिसेंट शेप्ड जब बन जाते हैं तो क्रिसेंटिक बढ़ने की वजह से स्टोमेटा जो है स्टोमेटा ओपन्स ये आपको दिमाग में रखना है गो गार्ड सेल्स ये एब्जॉर्ब करें वाटर सब्सिडरी सेलो पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज गसन इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर इज एसोसिएटेड विद पुलिंग ऑफ द आउटर इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स बाय द आउटर वॉल्स चूंकि यह एसोसिएट कर गार्ड सेलन मज रेडियली इलांगेटेड फाइबर्स वन माइक्रोफिब्रिल्स इनको माइक्रोफिब्रिल्स कहा जाता है इनसे अटैच कर और ये लम है एक्चुअली युकन ये ना लम युकन अल्टीमेटली बन मंजस क्रिसेंटिक शेप तथ वन स्टोमा क्रिएट मतलब पोर क्रिएट कॉन्सिक्वेंटली वनो स्टोमेटा गो ओपन सेकंड कंडीशन ये पहली कंडीशन है दूसरी कंडीशन में क्या होता है अब गार्ड सेल्स ही वाटर को लूज करते हैं मतलब आप इमेजिन करो इस तरह से ये पहली कंडीशन है अब दूसरी कंडीशन क्या है ये मैंने अभी आपको बताया किस तरह से यहां पे ओपनिंग होती है नाउ द नेक्स्ट वन इज अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या होता है दूसरी कंडीशन में सीधे जाके ये गार्ड सेल्स जो है गार्ड सेल्स सीधे जाके एक्सास्मोसिस करते हैं मतलब यम हसा आब लूज करन लूज आब ये करें सह रटे आब सब्सिडरी सेल्स ओब्वियसली ये आब लूज कर गार्ड सेल टर्गर प्रेशर गई डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर गई ये इनर वाल वात बे पन्ने जाए मतलब यम इलास्टिक आसान इलास्टिक बॉडी गई सह बॉडी यमिस पे फोर्स अप्लाई कर सह बॉडी गई डिफार्म ये वही वापस करो फोर्स रिलीज ये बॉडी कर रिगेन पन ऑरिजिनल शेप तथ वन इलास्टिसिटी गो तुम करो इमेजिन यमो गार्ड सेलो ये एब्जॉर्ब कर वाटर इन गई टर्गर प्रेशर इंक्रीज वनस गार्ड सेल लूज कर वाटर loss of water by the guard cell is responsible for decreasing the turgor pressure once the turgor pressure in the guard cells is decreased this decrease in turgor pressure is associated with regaining the shape of these inner walls ओता बना यम क्रिसेंटिक वह गम सोद इलांगेट गसन से करें कंप्लीटली पोर क्लोज मतलब अत बन स्ट्रक्चर ये आपको दिमाग में रखना है इस तरह से ये आपको दिमाग में रखना है गो ओतान आयो यमन दड़ हन युकन तिकाज ओतान गार्ड सेल्स टर्जड वन गार्ड सेलन मज गो टर्गर प्रेशर डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर इज एसोसिएटेड विद फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स गो गार्ड सेलो कोर वनकस लूज वाटर ये गार्ड सेलो लूज वाटर कसने से गो टर्गर प्रेशर डिक्रीज ये टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस तमें मतलब वो गार्ड सेल्स करें रिज्यूम पन ऑरिजिनल शेप एज ए रिजल्ट ये वाल इनर वाल तो यह इनर वाल ये पान वो नजदीक अम सत मंजस ये पोर क्लोज दैट मीन्स स्टोमेटा क्लोजिस और रीजन गार्ड सेल्स लूजेस वाटर गार्ड सेल्स करें वाटर लूज ये गार्ड सेल्स लूज करें वाटर loss in water by the guard cells is responsible for decrease in turgor pressure decrease in TP turgor pressure is guard cell must decrease as a result guard cells can regain original shape original shape will regain can automatically when guard cells flaccid and flaccidity is associated with simply closing of stomata गो वाटर पोटेंशियल गस सब्सिडरी सेलन मज डिक्रीज एंड वाटर पोटेंशियल गार्ड सेलन मज ज्यादा आप ट्रांसपोर्ट गसन फ्रॉम ए रीजन ये ज्यादा वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ये कम वाटर पोटेंशियल
सब्सिडरी सेलन मज कम वाटर पोटेंशियल, गार्ड सेलन मज ज्यादा वाटर पोटेंशियल। गो आब गस मूव फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडरी सेल्स। गो ये आब गस मूव फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडरी सेल्स, अत आब सती टर्गर प्रेशर, सुई टर्गर प्रेशर गस डिक्रीज। ये टर्गर प्रेशर डिक्रीज गस यह वाल तो यह वाल यी अकिस अख नजदीक, ये अकिस अख नजदीक यन ऑब्वियसली दे विल क्लोज द स्टोमेटा, मतलब ये बीच में जो पोर था वो क्लोज हो जाएगा। दैट इज क्लोजिंग, दैट इज क्लोजिंग। नाउ अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन किस वजह से होती है एक प्लांट में, रिमेंबर इट ऑलवेज। ट्रांसपिरेशन अगर तुम वो मे वो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ ए लीफ इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यूजुअली गसन स्पेशल पोरो किन तिमन वनान स्टोमेटा। स्टोमेटा बनोमुत आसान गार्ड सेलन हुन। गार्ड सेल्स यम साथ वाटर एब्जॉर्ब करन सराउंडिंग सेलो पे, मतलब सब्सिडरी सेलो पे, तिमन मन टर्गर प्रेशर इंक्रीज गसन। टर्गर प्रेशर इंक्रीज गसित हसा तिमन मन सिंपली मंजस अख पोर क्रिएट गसन, तथ वनान स्टोमेटा। तम पत तिकाज टर्गर प्रेशर इंक्रीज करने सो आउटर वाल इनर वालस पानस कुन लम हेवन, सह बनन क्रिसेंटिक। तम सह टर्गर प्रेशर बढ़न, तो टर्गर प्रेशर बढ़ने सह गार्ड सेल बनन टर्जिड एंड स्टोमेटा ओपन गसन। मगर यम साथ स्टोमेटा क्लोज आसान, तम साथ एक्चुअली गार्ड सेल्स लूज करन वाटर, लूज वाटर करित टर्गर प्रेशर डिक्रीज गसान। टर्गर प्रेशर डिक्रीज करने सह वाल वनिस तान क्रिसेंटिक बनियाव सह पन कंडीशन बे वापस अचीव करन, रिगेन करन, तम सह स्टोमेटा क्लोज गसान, तथ वनान क्लोजिंग ऑफ लीफ स्टोमेटा। नाउ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या स्टोमेटाकिंग तथ वनान स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। वन थवन ये याद ये ट्रांसपिरेशन कैज गसान। ट्रांसपिरेशन इसलिए गसान तिकाज यह अकिस प्लांटस मन सिंपली काम करान। अगर तुम वो प्लांटस मन सिंपली ट्रांसपिरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। तिकाज येले अख प्लांट दोहस गसान एक्सपोज टू द स्ट्रांग सनलाइट, अमिस मन हीटिंग इफेक्ट क्रिएट गसान। यह हीटिंग इफेक्ट खत्म करने खातिर यह ट्रांसपिरेशन गसान। तिकाज ट्रांसपिरेशन गसन सह इवापरेशन गसान, इवापरेशन प्रोवाइड करन अमिस मन कूलिंग इफेक्ट। ये पहला रीजन है ट्रांसपिरेशन क्यों होती है। पहला रीजन इसके लिए यही है, ट्रांसपिरेशन एक्चुअली provides a cooling effect to the plant, provides a cooling effect। यह सच अकिस प्लांटस कूलिंग इफेक्ट करन। ये तो योत क्या बल्कि ट्रांसपिरेशन की वजह से सेल्स जो है वो एक्चुअली अपनी वो ट्रांसपिरेशन की वजह से सेल्स जो है तिम हसा बनन टर्जिड। टर्जिडिटी ऑफ सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इट्स साइज। अम सेल्स रोजान टर्जिड या अख सेल मेंटेन करन पन शेप तो स्ट्रक्चर तेली ये टर्जिड टर्जिड तेली ये एब्जॉर्ब कर वाटर, वाटर कर तेली एब्जॉर्ब ये प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। गो ट्रांसपिरेशन मेंटेन करन, इट मेंटेन्स शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स बाय कीपिंग देम टर्जिड। यह सेलन बनावन टर्जिड। टर्जिड सेल मतलब टर्जिडिटी से सेल पन शेप तो स्ट्रक्चर मेंटेन करान। ये योत क्या बल्कि तुम पता ट्रांसपिरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स along the plant। Go, it is responsible for transport of minerals along with water, along with water। आब हेक ट्रांसपिरेशन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करान वाटर। बे फोटोसिंथेसिस खातिर आब लगन जरूरत, सो आब तमिस प्रोवाइड करन ट्रांसपिरेशन। सप्लाइज वाटर फॉर ट्रांसपिरेशन या प्रोवाइड्स वाटर फॉर ट्रांसपिरेशन। इट सप्लाइज वाटर फॉर ट्रांसपिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन द सेम वाटर इज सप्लाइड बाय ट्रांसपिरेशन। ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ नेक्स्ट फीचर ट्रांसपिरेशन, मैंने अभी आपको बताया मिनरल्स इसी की वजह से ट्रांसफर होते हैं, और ये लीफ सरफेस को यहाँ एक प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट। ट्रांसपिरेशन सती सेलन हुन स्ट्रक्चर मेंटेन गसन या शेप मेंटेन गसन।
मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज एसोसिएटेड विद टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। उसके बाद इट इज ये जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन क्रिएट कर ट्रांसपिरेशन पुल, सो ट्रांसपिरेशन पुल लगन जरूरत अकिस प्लांटस मज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन। रिमेंबर इट ऑलवेज। गो ट्रांसपिरेशन क्रिएट कर, इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। इसमें रात वन ट्रांसपिरेशन अकिस प्लांटस मज डेवलप कर ट्रांसपिरेशन पुल, सो ट्रांसपिरेशन पुल creates transpiration pull required for absorption and transport in plants। गो तमिक मतलब गो प्लांटन मज absorption तो transport possible गसन by transpiration pull। ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट करने खतर लगन जरूरत प्रोसेस अख दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यूजुअली साइंटिस्ट दपान इट इज ए नेसेसरी इवल। नेसेसरी इवल इसलिए तिकाज अगर तुम वुचो ट्रांसपिरेशनस मज लेस देन 1% ऑफ वाटर या 2% आब अख प्लांट इस्तेमाल करान, मगर मेजर पार्ट ये लॉस करान। मगर ये 2% आब एब्जॉर्ब करने खतर तो प्लांटस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करने। गो किसी चीज खतर प्लांट एनर्जी इस्तेमाल करन पन्ने खतर इस्तेमाल करन, दैट इज वाटर। ये वो लॉस करता है, लेकिन इसको एक प्लांट एलिमिनेट भी नहीं कर सकता। तिकाज अगर ट्रांसपिरेशन प्लांट एलिमिनेट करे, ऑब्वियसली यम प्रोसेसेस गसन अचीव किया। वो यह अकिस प्लांट सिंद खतर मुफीद ते, मगर यह अकिस प्लांट सिंद खतर नुकसान ते। अत वनान नेसेसरी इवल। ये ट्रांसपिरेशन जो है इट इज ए नेसेसरी इवल। नेसेसरी इवल, नेसेसरी इवल अमि लिहाज तिकाज ट्रांसपिरेशन सत प्लांटस मज मेजर परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस गसन। लेस देन 1% आब यह इस्तेमाल करान पन्ने खतर, मगर तूत आब लॉस करने खतर अकिस प्लांटस मज वारिया अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल गसन। इसीलिए आव यह करार करने यह हसा अख नेसेसरी इवल। अमि बगैर ट्रांसपिरेशन गसन दोयो चीजों की याद थो। मे दोप ओत्र ते एपिडर्मिस सिटमस नेबर की एनक्लोज करने बाय ए स्पेशल वैक्सी मटीरियल, तथ वन सिंपली सुप्रिन एंड तथ लेयर वन क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यूटिकल किन ट्रांसपिरेशन गसन। द लॉस ऑफ वाटर दैट occurs through the cuticle is commonly called as cuticular transpiration। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन गई सब प्रोसेस यथ मज लॉस ऑफ वाटर गई थ्रू द क्यूटिकल। सिमिलरली हमारे पास हमने पढ़ा था जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे, जो ये बारक होता है, बारकस पट या जो ट्रंक होता है प्लांट्स का, बल्कि प्लांट्स का, उनमें स्पेशल पोर्स देखे गए हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज लेंटिसिल्स। दोज लेंटिसिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। इमो किन ट्रांसपिरेशन गसन। वो मेजर ट्रांसपिरेशन इज मीडिएटेड थ्रू स्टोमेटा। रियर ट्रांसपिरेशन गसन क्यूटिकल किन through the lenticels। Lenticels are actually the pores on bark। These are simply the pores on a bark, or you can say more appropriate is these are actually the crevices on a bark। तमो किन ट्रांसपिरेशन गसन तथ वनान लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। मगर ये याद थावन स्टोमेटा अकिस प्लांटस मज सिर्फ आबी ओतन लॉस करने खतर लगन जरूरत क्या, बल्कि स्टोमेटा इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एरिएशन। स्टोमेटा is also responsible for aeration। ये एरिएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। एरिएशन का मतलब है सिंपली गैसियस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने खतर स्टोमेटा लगन जरूरत। वो स्टोमेटा त्रे काम कर अकिस प्लांटस मज। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाटर दैट इज अचीव्ड थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, व्हाइल एज सेकंड वन इज इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एरिएशन दैट मीन्स गैसेस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में एक्सचेंज होते हैं थ्रू द स्टोमेटा। तम पत याद थावन ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स में मॉडिफिकेशंस होती है। लाइक जीरोफाइट्स तिमन मन स्टोमेटा संकन आसन। इन जीरोफाइट्स द स्टोमेटा आर संकन एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। वो प्लांट्स पन्निस पानस मॉडिफिकेशंस एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। Modifications associated with plants, associated with plants। Plantan must come modifications associated with plants for reducing transpiration। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए एक प्लांट में ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से कम वाटर लॉस हो जाएगा। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन इसके लिए है, अगर आपने देखा होगा ये जो जीरोफाइट्स है मतलब डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, जीरोफाइटन मज गोडनिक इंपॉर्टेंट फीचर दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटा।
संकन स्टोमेटा मतलब गई तिम डीप आसान एपिडर्मिस बोन पहम आसान यूजुअली स्टोमेटा एपिडर्मिस पे आसान मगर जीरोफाइटन मन स्टोमेटा आसान संकन मतलब तिम डीप आसान तिकेज तिम ज्यादा कम गसन एक्सपोज टू द सनलाइट यूत कम गस एक्सपोज स्टोमेटा टू द सनलाइट तूत गस तमिस मज कम टेम्परेचर जनरेट तूत कर सो रिक्वायर कम आब। नेक्स्ट फीचर इन ही जीरोफाइट्स में यहाँ पे लीव्स को मॉडिफाई किया जाता है इनटू लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स सिंपली थवन याद ट्रांसपरेशन रेट या ट्रांसपरेशन ज्यादा गसन तमिस लीवस मज यमिस सरफेस एरिया ज्यादा ये वन तुम लीफी कर मॉडिफाई इनटू स्पाइन स्पाइनस मज सरफेस एरिया कम आसान गो ट्रांसपरेशन गया कम। एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जीरोफाइट्स स्टोमेटा ओपन करन ड्यूरिंग नाइट इनमें स्टोमेटा जो ओपन होता है ये नाइट में होता है और क्लोज जो होता है ये क्लोज होता है ड्यूरिंग डे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से स्टोमेटा जो जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को रिड्यूस किया जाता है। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल क्यूटिकल जहां पे ज्यादा होगा इसकी वजह से ट्रांसपरेशन रेट ज्यादा रिड्यूस होती है। These are the four factors which are responsible for reducing the rate of transpiration। अम बगैर तुझ इवन प्लांटन मज आसान डीप फीडर रूट सिस्टम और इनको आप यूजुअली कहते हो सकुलेंट्स। ये सकुलेंट्स क्या कहलाए जाते हैं? सकुलेंट्स मतलब गई स्टोर करन वाटर स्टोर्स वाटर। द प्लांट्स which stores water are commonly called as succulents। तिम प्लांट्स यम स्टोर करन आब तिमन वन सकुलेंट्स। ऑब्वियसली वही प्लांट स्टोर करेगा वाटर जिसमें वाटर की डेफिशिएंसी होगी जिसमें वाटर स्ट्रेस होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट्स द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स ट्रांसपरेशन तिम फैक्टर्स यम ट्रांसपरेशन पे इफेक्ट करन वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट ट्रांसपरेशन फैक्टर्स तिम फैक्टर्स यम ट्रांसपरेशन पे इफेक्ट करन गोडिक इंपॉर्टेंट फैक्टर वही वोन तुम सरफेस एरिया मतलब यूत ज्यादा सरफेस एरिया आसे तूत ज्यादा आसे ट्रांसपरेशन मगर यूत कम सरफेस एरिया आसे तूत आसे कम ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन इफेक्ट करन बाय टेम्परेचर मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपरेशन जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम ट्रांसपरेशन। ह्यूमिडिटी भी इसके लिए एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। ट्रांसपरेशन रेट अगर आप देखोगे द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट ऑन द ट्रांसपरेशन आर टेम्परेचर लाइट इसमें ह्यूमिडिटी भी आती है अगर तो वो क्या कहते हैं इसको विंड भी आती है मतलब स्पीड ऑफ द विंड थाउन याद। टेम्परेचर अगर इंक्रीज गए ज्यादा एज ए रिजल्ट ज्यादा हीटिंग इफेक्ट गए क्रिएट सो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा कर रिक्वायर ज्यादा ट्रांसपरेशन। नाउ उसके बाद अब यहाँ पे ये सारे अगर आप देखोगे ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स है मतलब यू कैन से दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स ती इस्तेमाल गसन या तिम ती फैक्टर्स यम एक्चुअली इफेक्ट करन ट्रांसपरेशन पे मतलब स्टोमेटान हुन नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑब्वियसली यीत ज्यादा स्टोमेटा आसन तूत गस ज्यादा ट्रांसपरेशन यीत कम स्टोमेटा आसन तूत गस कम ट्रांसपरेशन ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद एक प्लांट में वाटर स्टेटस क्या है मतलब अगर आप ज्यादा अवेलेबल ट्रांसपरेशन गई ज्यादा अगर आप कम अवेलेबल ट्रांसपरेशन गई वारिया कम वे गो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा कत डिस्ट्रीब्यूट करना एपिडर्मिस बन कन एपिडर्मिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ये आपको दिमाग में रखना है। नंबर ऑफ स्टोमेटा वाटर स्टेटस कितना है एक प्लांट का और स्टोमेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इन तीनों ये इंटरनल फैक्टर्स है दे आल्सो इफेक्ट ऑन transpiration। This is all about transpiration। Now tomorrow inshallah we will go for absorption of minerals in plants and what are the processes। Tomorrow's class is very much interesting and I request all the candidates of especially public higher secondary school please have a look on my lectures just go on to repeat those lectures। If you are facing any problem let me know don't worry I will be at your disposal। You know my contact number
I can provide my contact number again, that is 7889532913 or 9622796380. If you have any enquiry about botany, either whether it is first paper, that is first term, or second term, let me know. I will discuss each and every feature, and don't worry, I will be here available for you at any time. आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे लेक्चर्स को रिपीट करो और इनको देखो, अच्छी तरह से देखो और इनको लिखो भी। ये नोट आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आप लोगों को। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।